Hello everyone. Today we will discuss about the financial accounting and management accounting. Generally, accounting is categorized into three parts: financial accounting, management accounting, and cost accounting. But here we will discuss about the financial accounting and management accounting only. Financial accounting is almost similar to the accounting. Here you have to classify the data, analyze the data, summarize the data, and thereon you have to prepare the financial statements. Financial accounting is that part of accounting where we prepare the financial statements for the external person, for the investors, creditors and regulators. इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पर ही इन्वेस्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि उनको आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना या नहीं करना, क्रेडिटर्स ये डिसाइड करते हैं कि उनको आप क्रेडिट देना है या नहीं देना, रेगुलेटर्स अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके इनकम स्टेटमेंट आते हैं, बैलेंस शीट आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, और जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं? गैप को फॉलो करते हुए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना होता है। एंड as per schedule 3rd of Companies Act 2013, it is compulsory for any company to prepare the financial statements. So financial accounting we have to prepare the financial statement so that one can know about the financial position of the organization, about the financial health of the organization, and can make investment decision. What is management accounting? Management accounting is that part of accounting where one deals with the qualitative part of the information. Here we deals with the qualitative part of the information. Management accounting is also known as managerial accounting. Basically, in this type of accounting, you assist the management in decision making. You provide the information to the management so that management can take a decision. In financial accounting, you have to prepare the statements, you have to prepare the documents, and in management accounting you just present that document in front of the management so that management can take a decision. So management accounting helps in decision making. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं रेडी करने होते। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप दूसरे अकाउंटिंग टर्मोलॉजीज में डील करते हैं बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी नहीं करते। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करने होते हैं। यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं और मैनेजमेंट उस इंफॉर्मेशन के बेस पर डिसीजन लेता है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपल्सरी होता है प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपल्सरी प्रिपेयर करना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपल्सरी नहीं है। इट्स अप टू द ऑर्गेनाइजेशन. If they want to follow the management account in the organization, they can. If they don't want to follow, they can't. Now, what is the difference between financial accounting and management accounting? एक बार tabular form में इसको समझते हैं. First one, meaning of financial accounting. That part of accounting which helps in classifying, analyzing, summarizing and recording a company financial transaction. क्लासीफाइंग कहाँ करते हैं आप? लेजर में। एनालाइज करते हैं उसको, फिर उसको समरी बनाते हैं और फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फिर हम क्या करते हैं? एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अल्टीमेटली किस चीज में हेल्प करती है मैनेजमेंट की? डिसीजन मेकिंग में। Here we prepare the information, we collect the data, but यहाँ पर हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में डील करते हैं, उस स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन में डील करते हैं जो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। In financial accounting, show a true and fair picture of the financial position of the organization. ये ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल हेल्थ को डिपिक्ट करती है कि आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। बट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे पास ये सिर्फ मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, और जैसे हमारे जब हम डिसाइड कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। ये स्ट्रेटेजीज में हेल्प करती है और डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पीरियडिकल रिपोर्ट्स बनाते हैं। इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये इंटरनल होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली वंस इन ईयर ही हम प्रिपेयर करते हैं, बट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप रिपोर्ट्स को हाफ ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों लोगों के लिए होती है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट सभी जानना चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट्स लायबिलिटीज क्या है, आपके पास कस्टमर्स, क्रेडिटर्स सभी लोग इंटरेस्टेड होते हैं। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल यूजर्स के लिए होती है, सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होती है, बिकॉज मैनेजमेंट हैव टू टेक डिसीजन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपल्सरी है, इट इज मैंडेटरी फॉर अ कंपनी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट कंपल्सरी टू मेंटेन, इट्स अप टू द ऑर्गेनाइजेशन इनको फॉलो करना या नहीं करना। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करेंगे, यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स ऑफ गैप।
और जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर करेंगे, देयर आर नो फिक्स्ड रूल, कोई जरूरत नहीं, किसी रूल्स की यहाँ पर आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए स्पेसिफिक फॉर्मेट है कि आपको इसी फॉर्मेट के थ्रू डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है, इन्हीं फॉर्मेट्स को फॉलो करना है। बट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। जब आप इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करें मैनेजमेंट के सामने, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो डील करता है पास्ट ट्रांजेक्शन में, पास्ट परफॉर्मेंस में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप रिकॉर्ड करते हैं कि आपने गुड्स परचेज किया, सेल किया, या मशीनरी परचेज की, मशीनरी सेल करी, ये सब चीजें हम किस में डील करते हैं, पास्ट में। ये सब काम पास्ट में हुआ, तभी तो आप एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को या 31 दिसंबर को स्टेटमेंट्स को रेडी करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करती है पास्ट ट्रांजेक्शन्स में, लेकिन जो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डील करती है फ्यूचर डिसीजंस में, कि भाई अभी आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन है, अभी इस साल हमारे को इतना प्रॉफिट शो हुआ है, तो इस प्रॉफिट के बेस पर आगे आपको कोई नई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करनी है, कोई नई ब्रांच कहीं डालनी है या नहीं ओपन करनी है आपको। तो ये डिसीजंस हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि आगे उनको अपनी क्या स्ट्रेटेजीज बनानी है, क्या डिसीजन लेने हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपके एग्जांपल्स होते हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं, स्टेटमेंट दैट कैन बी योर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जिन अकाउंट्स, जिस स्टेटमेंट्स को आपको रेडी करना होता है, या जो हम एग्जांपल कह सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, वो होता है आपका बजट, कॉस्ट एनालिसिस एक्सेट्रा। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी देख सकते हैं। अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल बेकरी है, जो आपके एरिया में एक बेकरी शॉप है, वहाँ पर अकाउंटेंट है, ठीक है। एक अकाउंटेंट आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डील करता है, और सेम अकाउंटेंट को अगर हम बोल दें कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेंटेन करना है, तो जो फर्स्ट टाइम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है, वो क्या काम करेगा, उसका क्या वर्क होगा, वो रिकॉर्ड करेगा हर ट्रांजेक्शन्स को, जो भी उसके पास में बेकरी में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, वो हर ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करेगा, हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा एक्सटर्नल पर्सन के लिए, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, पूरा आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करेगा। जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उसका क्या वर्क होगा, वो क्या करेगा। मैनेजमेंट अकाउंटेंट बेसिकली एनालाइज करता है सेल्स डेटा को, कि आज ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सेल हो गई, कॉस्ट ट्रेंड को देखता है, वो ये डील करता है, ओनर की हेल्प करता है डिसीजंस लेने में। वो ये बताता है ओनर को कि भाई इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पर मैंने ये डिसाइड किया है कि आपका इतनी सेल हुई है आज पूरे दिन में, या पूरे एक 1 मंथ में, या पूरे 1 वीक में, हमने इतनी सेल्स आइडेंटिफाई करी है, ये हमारी कॉस्ट का पैटर्न रहा है। तो इन बेसिस पर आप ये डिसीजन ले सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली हम रिकॉर्डिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने पे फोकस करते हैं, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारा फोकस होता है डिसीजन मेकिंग में। इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप कॉस्ट में डील करते हैं, आप कॉस्ट को फाइंड आउट, एनालाइज करते हैं कि भाई इतनी कॉस्ट थी तो इतनी सेल हुई, मैंने कॉस्ट को इंक्रीज करा तो सेल डिक्रीज हुई या आपकी इंक्रीज हुई। तो इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप डील करते हैं फ्यूचर प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप डील करते हैं पास्ट ट्रांजेक्शन के साथ में। थैंक यू।